Why ICT? It is a well-known fact that no two people are alike. Since she is different, she learns in a specific way. In fact, every child learner can learn better if taught using more than one sense organ. Multiple sensory strategies used to enhance learning are visual, auditory, kinesthetic, and tactile, which are related to our five senses: hearing, seeing, smelling, tasting, and touching. ये सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। चूंकि वो अलग है, वह एक विशिष्ट तरीके से सीखते हैं। वास्तव में, प्रत्येक सीखने वाला बच्चा बेहतर सीख सकता है यदि उसे एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके पढ़ाया जाए। सीखने को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली कई संवेदी रणनीतियां दृश्य, श्रवण, गतिज और स्पर्शनीय हैं, जो हमारी पांच इंद्रियों को सुनने, देखने, सूंघने, चखने और छूने से संबंधित हैं। Textbooks, the surrounding environment, experiences within and outside the four walls of the classrooms, resources of teaching learning play an important role in learning. We must also ensure that each child becomes a self-learner, self-reliant, critical and creative thinker and problem solver. पाठ्य पुस्तकें, आसपास का वातावरण, कक्षा की चार दीवारी के भीतर और बाहर के अनुभव, शिक्षण अधिगम के संसाधन अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा एक स्वशिक्षार्थी, आत्मनिर्भर, आलोचनात्मक और रचनात्मक विचारक और समस्या समाधानकर्ता बने। For this she needs to be enabled. It requires the child to collect data, information, analyze, synthesize and present the data and share it with others. These processes help children in concept formation. Therefore, it is necessary that children acquire knowledge beyond textbooks and use more and more digital and external resources. इसके लिए उसे सक्षम करने की आवश्यकता है। इसमें बच्चे को डेटा, सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने, संश्लेषित करने और डेटा प्रस्तुत करने और इसे दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रियाएं बच्चों को अवधारणा निर्माण में मदद करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे पाठ्यपुस्तकों से परे ज्ञान प्राप्त करें और अधिक से अधिक डिजिटल और बाहरी संसाधनों का उपयोग करें। Keeping this background in mind, information and communication technology (ICT) can play an important role in improving the teaching learning environment. In a very short time, ICT has become one of the basic building blocks of modern society. इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बहुत ही कम समय में ICT आधुनिक समाज के बुनियादी निर्माण खंडों में से एक बन गया है। Nowadays ICT is used in understanding and mastering the basic skills of reading, writing and numeracy as well as the core of education. It has become a part and parcel of our life. आजकल ICT का उपयोग पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान के साथ साथ शिक्षा के मूल कौशल को समझने और उसमें महारत हासिल करने के लिए किया जाता है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। According to UNESCO, ICT refers to various categories of technical devices that are used to create, store, retrieve, manipulate, send and receive, exchange information. These technologies and resources include computers, the internet, websites, blogs and email, live technology, radio, television and webcasting, recorded broadcast podcasting, audio and video players and storage devices, telephones, fixed mobile, satellites, visual, video conferencing, etc. यूनेस्को के अनुसार ICT तकनीकी उपकरणों की विभिन्न श्रेणियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग जानकारी बनाने, स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने, हेरफेर करने, भेजने और प्राप्त करने, विनिमय करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों और संसाधनों में कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, ब्लॉग और ईमेल, लाइव तकनीक, रेडियो, टेलीविजन और वेबकास्टिंग, रिकॉर्डेड प्रसारण, पॉडकास्टिंग, ऑडियो और वीडियो प्लेयर और स्टोरेज डिवाइस, टेलीफोन, फिक्स्ड मोबाइल उपग्रह, दृश्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल हैं आदि।
आईसीटी हमें बताता है सृजन करना, संग्रहण करना, पुनः प्राप्त करना, फेरबदल करना, प्रेषण करना और प्राप्त करना। Let us take the example of smartphone. It can be classified as an ICT device because it can be used to create a digital image and store and retrieve it whenever it is needed. Changes can also be made in the digital image as per the requirement, and feedback can also be obtained by sending it to others. Thus, any device technology used to create, store, retrieve, manipulate, transmit and receive digital information can be classified as ICT. आइए हम स्मार्टफोन का उदाहरण लें। इसे एक आईसीटी उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग एक डिजिटल छवि बनाने और स्टोर करने और जब भी आवश्यकता हो, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल इमेज में जरूरत के मुताबिक बदलाव भी किए जा सकते हैं और दूसरों को भेजकर फीडबैक भी लिया जा सकता है। इस प्रकार डिजिटल सूचना को बनाने, स्टोर करने, पुनर्प्राप्त करने, हेरफेर करने, संचारित करने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण प्रौद्योगिकी को आईसीटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।